Eid Mubarak! This is our first Eid without our family, और honestly family के बगैर Eid लग नहीं रही. So it's our second month in Antalya, and in case you didn't already know, we've actually moved here. So in this video, we're going to tell you all the reasons why we moved to Antalya and not Istanbul. Let's get to it. So the first reason is the beach. Antalya has so many beaches. In fact, city के अंदर ही there are two beaches, Lara Beach and Kunyate Beach. And other than the city, in the entire Antalya province, there are around 206 blue flag beaches. Blue flag means they're the cleanest beaches. And that's the highest number of blue flag beaches in one area in the world. If you guys have watched our previous videos, you guys already know how much I love the beach. So being near the beach works out well for me क्योंकि मुझे एक तो इतना ज़्यादा शौक है swimming का, दूसरा I really want to learn free diving. The nearest beach is actually just 20 minutes away from our house by walk. And the best part is that it's a pebble beach. It's not a sandy beach. तो आपके sand नहीं चिमड़ती कपड़ों पे और पाँव पे. So when you go have a swim, you just come out, जब अपने आप को आप झाड़ते हो and you're good to go. Reason number 2, active outdoor lifestyle. One of the best things about Antalya is that there is so much to do. You can go to the beach to cool off. आप cycle चलाने चले जाओ. There are jogging tracks over here, very close by. अगर आप मेरी तरह हो तो you can go hiking as well. Depends on where you live. तो 20 मिनट भी दूर हो जाती है mountains यहाँ पे. So there's a lot to do. यहाँ पे private groups वगैरह भी हैं, yoga, meditation, zumba classes, all of that. So basically culture इतना ज़्यादा active outdoor lifestyle का है कि you're kind of forced to do it. Next point. There is a lot to explore. Antalya in general, the province, there is a lot to see and do यहाँ पे. Even just the city, अगर उसकी बात करें, there are like 3 waterfalls, there is a museum, there is an aquarium, there are shopping malls, food streets, there is so much nature, hiking spots, बहुत कुछ है यहाँ पे. Old town है, वहाँ चले जाओ, वहाँ old bazaar है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. And then अगर आप city से थोड़ा बाहर जाते हैं, एक साइड पे there is Alania, Cleopatra Beach, and then the रास्ते में there are ancient ruins that you can explore. उस साइड पे जाओ तो Kemer, and then Sidhe, Belek, and जितने भी छोटे छोटे ये शहर है ना, there are buses that go there, and you can also go there by car or taxi. And there's just every single place here has so much to see and do. तो you never get bored here. बल्कि अगर आप लोग अंतालिया घूमने आते हैं ना, तो I would say stay for as long as you can because there's a lot to do here. Next point, the weather. So main reason अब आए हैं हम इस्तांबुल versus अंतालिया पे. Main reason जो हमने अंतालिया choose किया है ना, it's also because of the weather. यहाँ पर most of the year it's very pleasant, which means कि ना इंतहाई गर्मी होती है ना इंतहाई सर्दी होती है. हाँ, साल के 3 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. Like right now it's June, July and August, but that's it. मतलब गुजारा हो जाता है. पाकिस्तान में इससे ज़्यादा गर्मी होती है. And it's not like कि winter में बिल्कुल ठंड नहीं होती. Winters इतने cool होते हैं कि we can wear hoodies and jackets and we love those. So the weather is perfect for a beach day, for hiking, for going out. It's amazing. Now compare this to cities like Istanbul. वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है. I mean it starts snowing in the winter as well, which is fine. ठंड is good, but not इतनी ज़्यादा extreme cold and not all the time. Even जब हम quarantine में थे, it was the end of June. And I remember अच्छी खासी ठंड थी. मतलब हम लोग blankets लेके बैठे हुए थे और radiators में ही चले थे और हम लोग अच्छी खासी ठंड लग रही थी. So Antalya works out well for us. Next reason is the food. टर्की का खाना दुनिया के अंदर माना जाता है. यहाँ पे हर टाइप की ऑप्शन है. अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो हेल्दी भी है. यहाँ पे कबाब्स वगैरह इतने मशहूर हैं इनके. आई नो ये पॉइंट सिर्फ आइसोलेटेड अंतालिया के लिए नहीं है, ये पूरे टर्की के लिए जाता है. देन अगेन हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि वी कांट ऑलवेज कुक एट होम बिकॉज वी वर्क ऑनलाइन, और इवन इन पाकिस्तान वी फाउंड आवरसेल्व्स ऑर्डरिंग आउट फ्रॉम आउटसाइड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. एमी नहीं मोटे हुए. So yeah, यहाँ पे भी we order food at least once a day. हम लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं और at least ये यहाँ पे थोड़ी हमें satisfaction है कि खाना जो है ना हमारा वो अच्छे ऑयल में बना हुआ है, उसके अंदर अच्छे ingredients हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाने का बहुत. And there are so many options if you want to eat healthy या फिर organic या फिर even homemade food. तो यहाँ बहुत ज़्यादा options हैं उसके, which is really great. And the best part, everything is halal. Next point. Safety. Antalya is a very very safe city. Alhamdulillah, so far हमारा experience has been very good here.
बिकॉज इस्तांबुल जैसी सिटीज आर रियली बिग, तो वहाँ पर इतना ज्यादा सेफ नहीं होता फॉर अ कपल लाइक अस मे बी, एंड ऑल्सो क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से हम थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस होते हैं सेफ्टी के बारे में। लेकिन अंतालिया जनरली इधर का कल्चर ना बहुत सेफ है। एक मजे की बात बताता हूँ कि जब लास्ट टाइम ट्रैवल करने के लिए आए हुए थे तो वी वर इन अंतालिया प्रोविंस, काश में हम लोग रह रहे थे, एंड वी वर ऑन अ बस जो कि लास्ट बस थी ऑफ द डे, और आई फॉरगॉट माय वॉलेट इन द बस। वो अलग बात है कि मानो के पास था मेरा वॉलेट, शी फॉरगॉट माय वॉलेट ऑन द बस। तो खैर जी, हम लोग निकल गए, हम लोग बस से उतर गए, बस चली गई रात को, और अपने वो जो ड्राइवर था उसने ही पार्क्ड हिज बस एंड ही लेफ्ट फॉर होम। जब हम लोग घर के रास्ते में जा रहे थे वॉक करके, तो मैंने मानो से पूछा, मानो मुझे वॉलेट दे दो, तो शी डिडंट हैव द वॉलेट, एंड तो पता ये चला जो वॉलेट था वी फॉरगॉट दैट इन द बस। मेरे से गिर गया था बस के अंदर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ था कि द गाय केम बैक फ्रॉम हिज होम, वेंट टू द बस स्टेशन, केम विद हिज बस टू द प्लेस जहाँ पे उसने हमें ड्रॉप किया था, गेव मी माय वॉलेट बैक, और फिर वो वापस गया था। सेम चीज एग्जैक्टली यही स्टोरी मैंने काफी लोगों को बताई, जैसे कि इस्तांबुल में अगर ये होता ना तो आप भूल जाओ कि कभी भी ना आपको मिलता है। सो इंसान पे भी डिपेंड करता है कि ऑफ कोर्स ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि इस्तांबुल में ऐसा है या फिर वहाँ पे ऐसे, कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट सेइंग कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ना, ज्यादा ख्याल रखते हैं लोकल्स इस चीज का। एंड ऑल्सो एज अ गर्ल मतलब मुझे बहुत ज्यादा होता है कि कि आई वांट टू गो आउट अलोन, अगर बाजार जाना है मैंने करीब शॉप पे जाना है, कोई ग्रोसरीज लेनी है और समथिंग, तो I need to feel safe when I'm on the road alone, if I'm cycling alone, if I'm walking alone. और अंतालिया में at least the area that we're here in Liman, it's very safe. Alhamdulillah, मैं walk कर रही थी and I was not the only girl walking alone there. Next reason is the public transport. Just like इस्तांबुल, अंतालिया के अंदर भी बहुत बहुत अच्छा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे बसेस चलती हैं, यहाँ पे ट्रैम्स हैं, यहाँ पे टैक्सीज भी अगर आपने इस्तेमाल करनी है, which is excellent. Actually, unlike इस्तांबुल, यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ओवर क्राउडेड नहीं है। इस्तांबुल में it actually gets really crowded on the trams and everything, and बहुत रश होता है, स्पेशली रश आवर्स पे अगर आप 5-6 PM पे जाते हैं। यहाँ पर इस तरह नहीं है, you often find buses that are half empty, तो which is really great. Next point, chill vibe. मतलब जब हम अंतालिया आए थे ना last year in October, November, I said to Zain कि this is the only city I can literally see myself living in. There is no traffic, chaos going around. This is coming from a Karachi girl, so मुझे टेंशन होती है रश से, crowded areas और हर वक्त का pollution and noise and everything. यहाँ है noise, but it's mostly like एक जगह पे like party हो रही है या कहीं music है, but generally there are people cycling आराम से, कोई बीच पे बैठा हुआ है, कोई आराम से sipping on their pina colada, it's very chill, and I love that about Antalya. And compared to Istanbul, again, Istanbul is not laid back and chill. If you've been here, you'd know that. Istanbul is all about, just noise and work culture, इस तरह का है। मोस्टली जो पाकिस्तानीज आते हैं दे गो टू इस्तांबुल बिकॉज वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। अंतालिया के अंदर वैसे जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तानीज यहाँ पे कम ही आते हैं। और पॉपुलेशन की बात भी करें तो इस्तांबुल हैज़ आई थिंक 10 times द पॉपुलेशन अंतालिया हैज़, तो वहाँ पे ज़्यादा रश है, यहाँ पे कम लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंतालिया में डिजिटल नोमैड्स एंड फ्रीलांसर्स का काफ़ी ज़्यादा सीन है, सो दैट्स गुड फॉर अस। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैफेज, places to work outside your home यहाँ बहुत ज़्यादा है, which is really great. I mean, we can just take our laptops and go to the beach and वहाँ पे sipping on a cold coffee or in Zain's case a strawberry smoothie every single day. And free internet, of course. And free internet. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, and in fact we are actually in a WhatsApp group of Antalya Digital Nomads, so there are a lot more people like us. So we're not alone here. That's great. नेक्स्ट रीजन इज दैट इट्स क्लोजर टू होम। अगेन ये पॉइंट टर्की के बारे में, नॉट जस्ट अंतालिया। जब हम कंपेयर कर रहे थे कनाडा और टर्की को, तो टर्की का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि सिर्फ 5 घंटे दूर है घर से, और कंपेयर टू कनाडा जो कि 20 घंटे 22 घंटे की उसकी फ़्लाइट होती है, एंड द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट मिलती है कि नहीं मिलती, सो इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं। वी वॉन्ट टू विजिट पाकिस्तान वेरी ऑफन, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट कि हमारी फैमिली आराम से हमें आके मिल सके, एंड उनके लिए 22 घंटे लंबी फ़्लाइट सफ़र करना, it doesn't make a lot of sense. Next point, Muslim country. Now this point is not just about Antalya but Turkey as a whole. जब हम मूव होने का सोच रहे थे तो we were assessing our options and we had the chance to apply to Canada or come to Turkey. One of the biggest pros जो था ना टर्की का was कि this is a Muslim majority country, और यहाँ पे आपको
हर मोहल्ले के अंदर आपको मस्जिद मिल जाती है, 5 वक्त की आपको नमाजों की आवाज़ आ जाती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हलाल फूड भी है। एग्जैक्टली और इससे मुझे ना एक और भी बात याद आई है, बिकॉज दिस इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, तो यहाँ पर मॉडेस्ट क्लोथिंग एंड हिजाब और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है, विच इज़ रियली ग्रेट। मतलब you don't, it's not like you don't see anyone wearing a scarf. You see them and you see a lot of shops as well, and यहाँ पे dresses भी ऐसे होते हैं, कपड़े भी ऐसे मिल जाते हैं आपको if you want to dress modestly, which is a great thing honestly. बहुत अच्छी बात है ये। Next reason is the cost of living. I'm not going to compare Antalya with a city in Canada because it does not make sense. Obviously, we all know कि महंगा शहर कौन सा होगा. Now I am going to compare Antalya with Pakistan और इस्तांबुल. अंतालिया के प्राइसेस अगर रेंट के बारे में बात करें तो दे आर फेयरली सिमिलर टू पाकिस्तान, लेकिन अगर इस्तांबुल से कंपेयर करके बात करें तो सेम एरिया की अगर बात करें कोनियाल्ती लारा एंड सिमिलर एरिया बनता है बेयोगलू और कदकोय बनता है मेरे ख्याल से, तो मोर देन डबल प्राइसेस होंगी इस्तांबुल के अंदर, और अंतालिया के अंदर मतलब 50% आप कर लो। यहाँ पे जो रेंट्स होते हैं ना मोस्टली अंतालिया में, देयर सीजनल, सो जब पीक सीजन होता है समर्स में तब रेंट्स थोड़े हाई हो जाते हैं, बट देन जब विंटर्स आते हैं तो आई हैव एक्चुअली सीन के हाफ स्लैश हो जाती है उनकी प्राइस, व्हिच इज ग्रेट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपार्टमेंट लेते हैं आपको लॉन्ग टर्म में चीपर पड़ेगा देन इफ यू वर लिविंग इन इस्तांबुल और एनी और मे बी अंकारा इवन। नेक्स्ट पॉइंट, द शॉपिंग। नाउ दिस इज कहने को तो लग रहा होगा कि सिर्फ मेरा पॉइंट है ये, बट इट ऑल्सो गोज फॉर ज़ैन। ही इज an avid shopper as much as I am. हम लोग को कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक है, और यहाँ पे हमारी सारी जो कूल कपड़े पहनने की जो एक थी ना अंदर, वो सारी पूरी होगी। And I'm not just talking about H&M, Zara, any सारे international brands. यहाँ पे इनके अपने जो local brands हैं ना, they're really really good. They're actually very affordable and very good quality wise. So that's great. And also there's Sephora here. Next point, the terrain. When we were deciding कि कौन सी सिटी हमारे लिए बेहतर होगी, Zain was totally okay with Istanbul's terrain, but I was not. If you don't know, Istanbul is built on 7 hills and पूरा शहर जो है ना ऐसे क्यों है? आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपने होटल से बाहर निकलेंगे और यूं स्लोप जा रहा होगा, एंड जब अगर आप गलत निकल गए उस स्लोप के नीचे जाना तो बहुत आसान होगा, वापस आना बहुत मुश्किल होता है। And call me lazy or whatever, I prefer flat terrain क्योंकि मैं उस पर आराम से साइकिलिंग भी कर सकती हूँ, वॉक भी कर सकती हूँ, and I just like it much better than Istanbul. और also हम ये भी सोच रहे थे कि in the future अगर हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं तो उनको probably मुश्किल होगी walking around the city. यहाँ पर उनके लिए comparatively ज़्यादा easy होगा. Next reason, one of my favorite reasons is that कि Turkey on a whole बहुत pet friendly है. If you know us, हमारे पास भी एक बिल्ला है मुन्नू, जिसको हम लेके आए हैं अपने साथ। ये हमारे लिए ना बहुत बड़ी बात थी कि यार आसपास वेट होना चाहिए, कोई पेट शॉप्स होनी चाहिए, एंड नाउ वी आर हियर। देयर इज अ पेट शॉप लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, बिल्कुल लाइक 2 कदम दूर। देयर इज इवन अ वेट देयर। There is also a dog park right in front of our home. I am actually thinking of making a video, so let's see. So that's it. That's all of our reasons for moving to Antalya. काफी ज़्यादा reasons हैं actually. Surprisingly. Yeah. जब हम actually started to list them down, we were like यार काफी ज़्यादा reasons हैं जिसकी वजह से हम यहाँ आए. So that's totally justified. At least so far, alhamdulillah. So once again, happy Eid. I hope that you're having a wonderful time with your family and loved ones. Please हमें भी दुआ में याद रखिएगा. And also those who are unable to celebrate Eid this year due to any reason. Stay blessed. Bye bye.